में मिस्टर देवांजन रे। आइए देवांजन जी। और प्रियंका जी आ चुकी हैं, प्रियंका रोच आनंद जी, आइए प्लीज़। ब्लांटिक ग्रुप से हैं प्रियंका जी, आइए प्लीज़ बैठिए। अक्षय भी आएंगे थोड़ी देर में, ज्वाइन करेंगे। आप लोग देख ही रहे हैं मौसम कैसा हो रहा है, तो थोड़ा आगे पीछे तो हो सकता है। नाउ लेट मी से कि जो थीम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस थीम इज़ नॉट जस्ट important theme to discuss, but also we have to remember that it's also a corporate mandate. And also, if I may say, it's also a moral imperative for us. Now, driving diversity, equity and inclusion in the modern workplace, why is it important? If I have to say this, we all understand that the goal of any large organization, any size of organization is to drive success. But how do you drive success? You need to create an environment where individuals are feeling valued, respected, even safe and empowered. Now, if you have a place like that, then you can be sure that there'll be innovation and we'll have a sustainable growth, isn't it, guys? So with that in mind, today we have stalwarts from different organizations who are going to throw light on how they are doing it, what they understand, what are the difficulties, and we'll learn a lot today. So let me start introducing the people on the dais. So firstly, let me talk about Ms. Deepika Mandalia. Now, she represents a very interesting organization, Startup, which is a leading global provider of customer experience excellence. Now, Ms. Deepika has a very vast experience in HR, various parts of HR, including talent management and diversity, equity and inclusion, HR operations also. So with that focus, she has supported a lot of initiatives within her organization, and especially for people with disabilities. So we're going to learn a lot from her today. Interesting fact about Startup is that they are connected with Sarthak since inception, isn't it? So that will really help us, in learning a lot about how her view is on our journey, Sarthak's journey also. So thank you a lot for joining us today. Now I move on to the second panelist who have joined us, Mr. Devanjan Ray. Now Mr. Devanjan Ray is head of HR retail business at V-Mart. Now he is a seasoned human resource leader. He has more than 20 years of experience, guys. And he has driven many strategic initiatives across different retail organizations. And his past has been with such organizations as Vishal Group, which is TPG Wholesale Private Limited, Videocon Group, Woodland, McDonald's, Sahara. So the list is really very long here. And he is renowned for developing business leaders. He is renowned for developing top talent to support the organization's growth. And he has been very successful in doing that. And that's why he has driven very good initiatives to drive employee engagements also. So welcome, sir. Today we'll learn a lot from you. Thank you, sir. Thank you very much. Now then we have our panelist, Ms. Priyanka, who is also a founder and CEO. So she brings with her the experience of launching a group as well. So I think shaping the organization with these thoughts about diversity, inclusion from the beginning itself. So this is going to be great learning. Let me talk about her a little bit. Ms. Priyanka has over 18 years of HR experience. He has worked with many multinational corporations. In 2023 November, she launched this Baltic HR Solutions. Now, most of you know that Baltic HR Solutions is into HR management solutions, and it has a lot of expertise in updating HR policies for diverse industries. Now, actually she has done some tremendous work which I'll talk about later,
But let me also tell you that she has, a very interesting mandate here, that she wants to empower individuals through HR and fashion, which is a very interesting twist here. HR and fashion. Have you guys heard about it in the? I am hearing for the first time. So thank you all for joining today. What I'm going to do is I'm going to go across the room and ask you a question which in my mind would resonate very well with what you have done. And with that, what we'll do is we'll spend some time and we will then open it for audience to ask any questions. So feel free to do that today. Now, before I start asking the questions here, a big round of applause for all the people on the panel here. Now, also we have to understand that we all have to be very keen participant here, because DEI, this is a big topic and we need to ask questions to learn something. Even if you don't have any questions as such, it would be really nice if you can share your experience at the end of it. I will open it up for after about maybe 30 minutes, if that is okay. So let me start. Okay, Miss Priyanka. So I understand that you have hired more than 20,000 freshers, including about more than 5,000 from northeastern regions. Now, isn't that awesome, guys? And you were also involved in supporting NGOs, youth, women empowerment, and orphans. So you have a very large experience here. Now, what I really wanted to ask you, therefore, that what are the challenges and opportunities in fostering corporate engagement for accessibility, because you have probably faced it firsthand. So please enlighten us with that. Sure. Thank you, Samir. And this question is really close to my heart, mainly. See, the challenges are always there in the corporate world, because we are working for the inclusive workforces and all, but the opportunities also are there, because there are so many training centers are there under NSDC and even the NGOs and CSR. So there are so many people to whom we can, recruit. Even for, as you said, 5,000 candidates we have recruited from Northeast region. Northeast means we have so many people out there, so we have recruited for the corporate sections mainly. And all the freshers, they have come from the training institutes under NSDC. So we have placed so many candidates in the corporates. But yes, opportunities are there, but there are also challenges, because it is based on the requirements. Technical things are not there. Even the resource allocation is very less. So that is the challenges which we are facing at the corporate level mainly. Because technical wise also there are some, computer, not only computer digitizations and all, they are not aware about it. We have to give the trainings and all, and we have to keep the resources for them particularly. So small organization, it is very difficult, but yes, there are opportunities given by the IT sectors like Wipro, TCS, Infosys. So Capgemini, they are doing very well, and they place the candidates from this, community. So it is both like, challenges and opportunities, both are there for this community. Okay. So if I understand it, there are challenges because people need to be trained when they are hired, and it's not that when you hire people, you can straight up put them into the workplace. And surely there would be issues with the policies that need to be tweaked, workplace need to be adjusted. So yeah, I mean, this is definitely, but it's a marvelous thing you have done, because you have really hired more than 20,000 people. Hiring guys is a very difficult task, even for people who have a lot of opportunities already there in the mainstream, because this is a matchmaking kind of a business, isn't it? I mean, you have to find people who are interested in hiring, and then also find people who are sufficiently interested in being hired. But it's a great contribution to the GDP of any country. If you can do it frictionlessly, this is going to be great. With that in mind now, I would look at Mr. Debanjan Ray. Now, sir,
I can only marvel at the scale that you operate. Look at VMart, you more than 300 stores, more than 200 cities. The challenge that you have is very, very large. I'm sure you have moved thousands of miles already. So therefore, what are the, and I really wanted to know more about this, like, what are the key inclusive hiring practices your organization has implemented. So please give us a detailed, you know, lowdown on that so that we can learn and implement in our organizations also. Because there are many leaders here today who are from different organizations. They can carry something from what VMart has done and you have done, sir. Thank you, Samir. Good morning, ladies and gentlemen. I hope you all had your breakfast, tea, coffees. Everybody's looking pretty fresh and excited also. I'm coming after morning, woke up at 2 o'clock. Suddenly saw that I have to go to Mumbai, and particularly joining the delegation with Sarthak. And Sarthak has been one of my buddies from the start, where I started my journey in diversity and inclusiveness, right? So I just couldn't miss this opportunity to be there. So as I say, it's 16 years, and I started with them, I think, with Mr. Agarwal. Dr. Sahab hai yahan pe? Baithe hue hain? हाँ डॉक्टर साहब अभी थे यहाँ पे Acha. आप So I started around 10 years back when Sarthak was just a 6 years old company. And there I was in a different organization with Vishal Megamart before, and where we started the diversity and inclusiveness, and we named the program also. We always believe that until and unless we do not call PWDs, right? We have a program name, we have dedicated, like the government calls them Divyangan, okay? We call them Udbhav, the rising, right? So that was the dream of getting up to a level where we wanted to build up a population of more than 10% of our frontline associates. And by the end of the term with Vishal Megamart, I think with the help of various organizations like Majorly Sarthak, then Youth for Jobs, Dr. Reddy Laboratories, a few of them just coming to my mind, we built around 1,500 people. I'm not as good as Priyanka, where I can see 20,000 people is wow. That is something I can just say. Now, let me tell you, currently I represented a company called VMart Limited, Retail Limited. We are a fashionable value retail organization in the country with more than 450 stores, located in Tier 1, Tier 2, Tier 3, and Tier 4 cities, diverse across 26 states, 350 cities, and we are one of the best value retail fashion world. I hope I'm looking fashionable, right? So thank you for that. Okay, so I would say the biggest journey in terms of diversity and inclusiveness starts with the mindset, Samir. You know, organizations believe that they want to do this, right? Unfortunately, they just when it comes to the implementation stage, right? There they believe that this is a CSR activity. Let's look at in that manner, and we will participate in that CSR activity, and we'll do that. But for us, we from the scratch decided that this is not a CSR activity for me, right? It's not a charity, it's not a CSR activity. It's a purely business model for me. Simple as that, that this was a business model where we launched something like, we called our program as Vihan, the dawn of, and I don't say disability, we call it diversibility. And that is how we look at it, right? So we feel that they have tremendous, the Divyangans have tremendous diversibility talent which comes across us. And when we decided to go into the program, our major goal was very clear in our mind, right? That this is not a CSR. We're going to look at it as a business model. And business model was, you know, totally targeted towards a major concern of ours. And that concern was a high attrition among my frontline staff, which is more than 50%, let me tell you, in the country, right? Whereas
In terms of my diversibility candidates who are my Vihan candidates who come into my organization, their stay with the organization is more than 80% retention, right? The stickiness to the organization is such that it really solved our problem in terms of, retaining people in our frontline stuff. So we made it a business model very quickly. In 2022 mid, we started this program full-fledgedly in VMart Limited. As I said, a lot of mindset had to be changed, and that mindset comes from the top management. So any of the organizations who is sitting out here first has to look into the things that, mindset, change has to be driven from the top. Until unless your top management believes in it, and believes in it very passionately, I would say, right? Otherwise, this kind of programs doesn't work well, okay? This may start well, and slowly and steadily, it just fades away. So in our point of view, when we started out, we not only built it as a business model, but we saw it as a platform that we will deliver week by week, month by month, year by year, a hiring practice in the organization where we'll have 10% of our population, of working frontline population, right, as Divyangans. And we made it very clear that we are very clear in our roles that what we wanted to have. So 90% of our sales associate that we pick up from the Vihan, program, they are SHI, right? So speech and hearing impairment, and they work beautifully for us, right? The kind of customer services they provide at the stores, the dedication, the sincerity, the passion they work out in the stores, that is where. So if I just say about the numbers, it's not too much to boast about at this present stage, I would say. So yes, we started out meagerly at 50 people, in 2022 mid. By 2023, maybe another 50 people added up. So we were at 100, and we were thinking, what would we do with this kind of drive? We cannot have this 10% of my population. So we completely put a zonal teams across. So we have zonal HRs across, and we made them spokes, and they built more champions within the operations team. So we called them the Vihan champions, right, across. And then we started having a weekly review of every hiring every week, right? So there was a complete focus on building up, our channel of NGOs, organizations like Sarthak, Youth for Jobs, Dr. Reddy's Laboratories. We connected with all of them. And this year, I think by the first quarter, from that 100, we have traveled to a number of 350, which is more than 100% growth for us, right? So that is how I can say that, our inclusive hiring policy is really working well. However, as a challenge, I would say is that what I want to do, I want to hire more than 1,000 people this year, right? Unfortunately, what I see here is my sourcing funnel is very low at this present moment. So if there are NGOs out here in this room and people who are into this, deployment of the Divyangan, please come across. My team is also sitting with me, Mr. Ishu Kumar. If you can just raise your hand. Yeah. Ishu heads my talent management and talent acquisition, and he's part of the, Vihan project, right? So please connect with him. Major problem, Samir, what comes to us is that we are deep-rooted into Tier 2, Tier 3, and Tier 4 cities, okay? So that is where my problem of sourcing happens, So there are not enough NGOs, not enough people who come up to me, and actually I would ask Priyanka to help me. How did you, get 5,000 people in Northeast? I have more than 20, 25 stores coming in Northeast, and I would love to have, 100 odd people from there. So we'll slowly build it, जैसे कहते हैं बूंद से बूंद मिला के करेंगे. लेकिन that is what my top management believes, right? That I want to, chase a 1,000 number. I won't talk about training and development. I won't talk about the promotion. I want numbers first. Let me be the biggest PWD organization in this country, and then I will talk about others.
I Thank you, just guys. add here, thank you, because there are so many opportunities because there are candidates over, all over Pan India. The main thing is that the right candidate we have to search. We have to, find out where they are, available. So that is the main thing which we have to focus So, on. Priyanka, what we have is, our problem is the bandwidth, Yeah. right? So we are spread very strongly across. So when you're talking about, we are small cities, towns where we are into, and there is the problem that we cannot connect with the right kind of an NGOs or the right kind of, even in the government agencies are not helping out much, where we can have a continuous flow of people coming us for hiring. Right, so there would be some attrition, which would definitely happen, and we would love to cover that attrition across. So we need a steady flow of manpower in various cities and various pockets of the country, and that is where I think more than 4-5 NGOs that broader NGOs that I'm working with, I think I would like to have local, zonal, even to Jila Parishad level, agencies who can come up and take up this cause with us, right? And provide us the employment. And there is no problem with technicality. Retail is not a rocket science. It's a very simple trade, right? You just have to be knowing how to do fashion, and we'll teach you fashion, how to sell fashion. That's not a problem. The only thing is that you need to have that passion. You need to be, be connecting with us properly, and we are ready to take the numbers across. Yeah, and it was very surprised, the state like Nagaland, the girls never comes to the big cities in the metros and all. So when we approached to the Nagaland girls, it was like recently 2 years back. So now from this state, many female candidates are coming out to the big cities. So these are the things, awareness we have to give it to the small, cities so that they can come out to the metros So and I work. think the benefit of जो आज हम पैनल कर रहे हैं उसका एक बेनिफिट ये देखिए कि डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल को हम सब थैंक्स करेंगे उसके लिए कि स्टेज पे ही अभी जो डिस्कशन आप देख रहे हैं उसमें देवांजन जी के जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए शायद जो मिस आनंद के पास में पास एक्सपीरियंस है वो भी बड़ा हेल्पफुल हो सकता है कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में कैसे हायर किया जाए। अब हमारे साथ में जो आपने अभी डिस्क्राइब किया हिंदी इंग्लिश में हमें बोलना है, मेरे ख्याल से आप सब भी कंफर्टेबल होंगे इसमें, कि जिस तरीके का आपने एक सिस्टम बताया, किस तरीके से आपने पॉलिसीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी हैं, माइंडसेट से सारी चीज़ स्टार्ट होती है। और देखिए आपने नेमिंग कितना अच्छा किया विहान, और एक बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट चैलेंज आता है कि एट्रिशंस का, और उसको भी देखिए आपने कितने अच्छे से सॉल्व किया, या फिर उस दिशा में आप बढ़ चले हैं जहाँ पर कि आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं कि जिनका काफ़ी ज़्यादा रुकने में इंटरेस्ट होता है, प्लस वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। आपने काफ़ी सारे स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों को हायर किया है। साथ ही साथ में आपने स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया है कि आपके पास में जो विहान चैम्पियंस हैं वो उसको आगे लेकर के जा रहे हैं। सो इस समय मिस्टर केशु जो आपकी टीम से हैं, लेट्स वेलकम हिम ऑल्सो, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम टू ज्वाइन हियर एंड टेक इंटरेस्ट। After this panel discussion, we'll definitely learn a lot by meeting you over tea, coffee and understanding more from you, sir. अब हमारे साथ में एक और हमारे बहुत ही अच्छे गेस्ट जिनको थोड़ा सा टाइम हो गया था, आने में देर हुई आपको, थोड़ा आपको फाइन लगेगा इसका। अक्षय त्यागी जी नमस्कार। आप ललित होटल से हैं, आपसे पहले हमारी बात हुई है, आपने बताया है कि आप DEI में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और आपका जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा था पार्ट, बाकी सब लोगों को बताना चाहूँगा मैं, कि इनका एजेंडा काफ़ी ब्रॉड है। उसमें इन्होंने एसिड अटैक विक्टिम्स, इस तरीके के और भी LGBTQIA++, इसमें भी बहुत अच्छा इन्होंने रोल प्ले किया है, क्योंकि जो इंक्लूसिव सोसाइटी होती है उसमें आप सबको रिस्पेक्ट करते हैं, और आप ऐसे पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिससे कि हम लोग लर्न करेंगे, जिसमें कि हर कोई बड़ा सशक्त फील करता है। तो अभी हम इस बारे में बात करेंगे आपसे, और इस समय मैं वापस जाना चाहूँगा आपका, दीपिका जी आपके लिए हम लोगों ने नेम प्लेट यहाँ पे लगाया कि नहीं लगाया?
कुछ मिस्टेक हुई है हमसे, लेकिन वो दूसरी तरफ है। दीपिका जी, आपको मैंने जैसे बोला था कि आप एचआर की बहुत बड़ी एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, और स्टार्टअप के साथ में आपका बड़ा अच्छा एक इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो आपसे जो मैं जानना चाह रहा था वो इस बेसिस पे था कि आप हम लोगों के साथ में बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं। सार्थक के साथ में जब सार्थक चालू हुआ था तभी से आप जुड़ी हुई हैं। तो क्वेश्चन आपसे मैं ये करना चाहता हूँ, जो कि कुछ इनवर्ड पॉइंटिंग क्वेश्चन है, कि हाउ कैन बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सार्थक they can collaborate to expand access and opportunity for people with disabilities, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ट्राइंग टू डू गुड फॉर ट्रेनिंग ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज़, कि हाउ टू कोलेबरेट, हाउ टू अप्रोच इट। सो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए हमें इस बारे में। So good morning everyone, and very congratulations to Dr. Agrawal once again and the Sarthak team to organize this wonderful event. So StarTech, basically the organization has always been passionate about DEI and more importantly, working with the PWDs. So we are, connect with StarTech since Sarthak since 2011. So yeah, and we have total around more than 500 PWDs working with us, and the journey we have started since 2011, and after that we have not looking back. And so 500 PWDs जो है हमारे साथ, so we have holistically engaged them throughout the entire life cycle of hiring, engagement, progressive policies and career growth. Focused engagement and we are including the target-based recruitment. So, and I am happy to say that Sarthak has been an integral part of the journey since 2011 with us. So, coming back to your question, there are a couple of points which I, wanted to share. So, the job mapping, first of all, okay. So, exploring suitable jobs for roles for person with disabilities, aligning the right candidate to the right profile, reasonable accommodation and accessible ecosystem while conducting interviews will help them to, effectively meeting their job requirements. Then the second thing is, hiring through the job fairs and other methods. So providing a common platform for numerous companies who are, open ups and opportunities for the PWDs. Another thing is sensitization workshops. So this is the most important methods aimed for creating awareness among corporates who are venturing into this space. Skill development and digital literacy through the education, programs. Early intervention and skill development centers go a long way for empowering PWDs. Also, I think the latest addition, Sarthak Global Resource Center, is the strongest addition to this journey and advancing the landscape of disability empowerment. And I think we have various and myriad ways which NGOs and corporates can collaborate, and we just have to begin rest as follows. Thank you. एक्सेलेंट, आपने पूरा रोड मैप दिया हमें और काफ़ी यूज़फुल है ये। कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस जर्नी में डॉक्टर अग्रवाल काफ़ी आगे जा भी चुके हैं। स्टार्टिंग विद जॉब मैपिंग आप कह रहे हैं हमें आगे बढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ में जो हमारा सेंसिटाइजेशन का वर्कशॉप, इस टाइप की चीज़ें हैं। अगर मैं इसको देखता हूँ तो इस समय हमारे पास में जो सार्थक के पास में जो इस समय फैसिलिटीज़ हैं, या जो उसमें डिजिटल लर्निंग वाला पार्ट है, उसमें भी काफ़ी अच्छा एक लर्निंग का कैपेबिलिटी अवेलेबल है। अभी हमारे साथ में जो और गेस्ट लोग बैठे हुए हैं उनसे भी अब हम थोड़ी देर में कुछ जानना चाहेंगे, और उसके बाद में
कुछ आपके पास में कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, जिससे कि हमें थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा कि आपको कोई चीज़ अगर इसमें इंटरेस्टिंग लगी। अब मैं अक्षय जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं ऑडियंस को बोलूँगा कि आप अपना क्वेश्चन पूछें, तो आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन या ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार रहें। अक्षय जी, आप जामिया मिलिया इस्लामिया से आपकी एजुकेशन है और उसके बाद में आपने यहाँ पर ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप और उसके अलावा केशव सूरी फाउंडेशन के आप फाउंडिंग मेंबर भी हैं। काफ़ी आगे बढ़ाई है आपने जर्नी ये इस ग्रुप की, और जो मेरा आपसे पहले डिस्कशन हुआ था उसमें मुझे सबसे इम्प्रेसिव ये लगा था कि आपने पॉलिसी लेवल पे वर्क किया हुआ है, जो कि बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि तरह तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और सबको एग्री करना बड़ा मुश्किल काम है। अब आपने इतनी जर्नी करी ली है, तो मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो आपकी फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ को लेके है। सो अगर आप हमें ये बताना पसंद करें कि व्हाट फ्यूचर स्ट्रेटजीज कैन बी अडॉप्टेड टू फर्दर प्रमोट एन इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल वर्क प्लेस, तो उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं या फिर क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रहे हैं? अक्षय जी। नमस्कार एवरीवन। सबसे पहले तो मेरे को आप लोगों को ये बताना है कि जब हम ख़ास तौर पर डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो इस शब्द को लेकर भी लोगों की अपनी अलग अलग धारणाएं हैं, जिस पर हमारी भी चर्चा हुई थी कि इसको किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए और किस तरीके से हमको सोसाइटी को, परिवारों को कन्विंस करना है कि डिसेबिलिटी एक गंदा वर्ड नहीं है, डिसेबिलिटी के साथ पैदा होना कुछ गुनाह नहीं है, और उसके अराउंड जो बातचीत हो रही है उस बातचीत को किस तरीके से मेन स्ट्रीम करना है, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और इसको समझना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो हमको आह्वान करना है। हम लोगों को ये ज़रूर समझना है कि जब हम परिवारों में डिसेबल्ड, हमारे यहाँ पेरेंटिंग की कोई क्लासेस नहीं होती हैं, किसी को समझाया नहीं जाता है कि आपको अपने बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, और हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा एक बच्चा होता है, बजाय कि एक डिसेबल्ड चाइल्ड और एक LGBTQ चाइल्ड और एक एसिड अटैक विक्टिम चाइल्ड, दे आर अ चाइल्ड। और ये जो भावना है, ये भावना वक्त के साथ साथ जब हम समाज में जाते हैं तो वो बदल जाती है, क्योंकि समाज में हर किसी को एक लेबल दे दिया जाता है कि आप अब ये हो, आप अब ये हो। और जो ख़ास तौर पर डिसेबिलिटी की बात आती है ना, तो मेरे को लगता है कि इन नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे तरीक़ों से हम सब किसी न किसी प्रकार से डिसेबल्ड हैं, और ये भावना हमको तब समझनी चाहिए कि हम सब अपने आप को शीशे में देखते हैं और डिसेबिलिटी आपको आपके अंदर अंतर दिखाती है। जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हमें दिखता है कि हमारी एक आँख दूसरी आँख से छोटी है, हमारी एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों से छोटी हैं, हमारे शरीर का आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से से अलग है। तो हम सभी किसी न किसी प्रकार की एग्जिस्टेंस ही हमारी अंतर है उसमें। तो अगर हमने अपने अंदर की डिफरेंसेस को एम्ब्रेस किया है, उसको सेलिब्रेट किया है, कभी अपनी आँखों में हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते या एक बोलते कि आज तू मत दे क्योंकि तू छोटी है, दूसरे हाथ से नहीं बोलते कि आज तू काम मत कर क्योंकि तेरे हाथ की उंगलियां छोटी हैं, तो हम जब वो डिफरेंसेस बाहर थोड़े और विजिबल हो जाते हैं तो हम क्यों डिफरेंसेस को देखते हैं, क्यों हम उनको समझते हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा। और ये मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से भी है जो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को कॉन्फिडेंस तभी मिलेगा जब आप अपने बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। आपके अंदर की भावना जो है, वो जो डर है वो ख़त्म होगा कि नहीं आपका बच्चा बाहर जा सकता है। मेरे साथी यहाँ ध्रुव बैठे हैं और ध्रुव पीछे ऑडियंस में भी हैं। ध्रुव, एक बार आप सबको हेलो बोलो। ध्रुव थाने में रहते हैं और अंधेरी तक रोज आते हैं। इनके घर जाने का रास्ता लगभग 2.5 घंटा लगता है, लेकिन उनकी जो इच्छा है, उनकी जो निष्ठा है काम के प्रति, वो उनको रोज़ सुबह 5:30 बजे उठने को विवश करती है और रोज़ सुबह 9 बजे, रोज़ रात को 9 बजे अपने घर पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप इनकी अटेंडेंस देखेंगे तो ये 100% काम पर आते हैं। और ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हम इंक्लूसिव है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों में काम करने की इच्छा है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि उनके पेरेंट्स को पता है कि उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनके अंदर काम के प्रति और अपने जीवन के प्रति सच्चा भाव लाने के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने ऊपर भरोसा करें। हम जिन कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं, हमें समझना होगा कि ये वो कम्युनिटीज़ हैं
जो बहुत ही लंबे अरसे तक समाज में एक किनारे पर बिठा दी गई और उनके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। हम में से किसी ने अपने स्कूल्स में सवाल नहीं पूछा कि हमारे स्कूल में व्हीलचेयर यूज़र्स बच्चे की संख्या कम क्यों है, क्योंकि समाज में तो आप बात करते हो कि 1 करोड़ लोग हैं, तो हमारी क्लास में स्पीच एंड हियरिंग डिसेबल्ड बच्चे क्यों नहीं हैं, हमारी क्लासेस में विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे क्यों नहीं हैं, हमारी क्लास में ऑटिज़म, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं है। और क्योंकि हम सब ने वो सवाल नहीं किए तो वो उन सभी के लिए जो ढांचा है वो एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल तक सीमित रह गया। जब अब टोटल संख्या की बात करेंगे तो उस टोटल संख्या के विपरीत में जो नंबर ऑफ स्कूल्स है उनकी संख्या बहुत कम आपको दिखेगी। अब हम एक तरफ बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं इकोनॉमी की तो हम बात करते हैं कि आप जीएसटी लाइए, आप पेटीएम लाइए, फ़ोनपे लाइए, डिजिटल इकोनॉमी बनाइए, लेकिन वी फॉरगेट कि हाउ डू वी मेक देम ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। हम अनअकाउंटेड मनी को अकाउंटेड मनी लाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए बात नहीं कर रहे, उन ब्रिजेस को डेवलप करने की बात नहीं कर रहे, जहाँ से जो आज तक बच्चों के साथ, हमारे साथियों के साथ ये हुआ कि उनको स्कूल की एक्सेसिबिलिटी नहीं मिली, कॉलेज की एक्सेसिबिलिटी नहीं मिली, और आज वो 18 वर्ष से अधिक आयु में हैं जिनके पास कोई स्किल सपोर्ट नहीं है। हम उनको कैसे मुख्यधारा से जोड़ें, और उस मुख्यधारा को जोड़ने का प्रयास हमने द ललित होटल्स में किया। हमने कहा कि आप किसी भी एडुकेशन बैकग्राउंड से आइए, किसी भी वर्ग विशेष से आइए, हमें ज़रूरत है आपके अंदर की निष्ठा की कि आप काम करना चाहते हैं, आपके अंदर वो जुझारूपन है कि आपको सीखना है, और हमारे अंदर वो निष्ठा है और वो जुझारूपन है कि हम आपको सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। और विदाउट एनी ऑफ दीज बाउंड्रीज पहले हमने 3 महीने लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजा कि आप जाइए और देखिए कि क्या आपको अच्छा लग रहा है। हम कई बार जॉब मैपिंग पे अटक जाते हैं क्योंकि हमें खुद लगता है, और ये सबसे गंदा मेरे को लगता है कि हम करते हैं, जो है अज्यूम करना कि ये चीज़ें हैं, ये लोग ये चीज़ें कर लेंगे। I mean, हम सब लोगों को पता है कि हमारे देश में पैरालंपिक्स के कितने एथलीट्स हैं जिनको अगर आप देखेंगे और आपका दिमाग और आपका भाव कभी नहीं सोचने देगा कि ये लोग एथलीट्स हैं और ये लोग आपको ओलंपिक्स में प्राउड करके आपके देश के लिए मेडल जीत कर लेकर आएंगे, लेकिन वो लाए। तो इसीलिए हम लोगों को अपने आप को वो कहीं से भी बांधना नहीं है कि वो लोग ये नहीं कर सकते, वो लोग ये नहीं कर सकते, वो सब कर सकते हैं अगर आप उनको करने के लिए एक मौका दें। तो वो मौका हमने दिया। हम 2019 में स्टार्ट किया। आज लगभग 250 से ज़्यादा हमारे ऐसे साथी हैं जो अलग अलग डिसेबिलिटी स्पेक्ट्रम से आते हैं। 3 महीने के एक्सपोजर के बाद हम 6 महीने उनको ट्रेनिंग देते हैं। 6 महीने में हम उनको 3 डिपार्टमेंट्स में भेजते हैं 2-2 महीने के लिए, कि अब आप जाइए और देखिए क्या आपको अच्छा लग रहा है और किस में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि होटल एकमात्र लोगों का इंटरेस्ट नहीं हो सकता है और हमको वो रिस्पेक्ट करना होगा कि हम चाहे दुनिया भर के लिए बोल रहे हैं कि हम होटल में वो सेफ स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन हम सबकी अपनी इच्छा है, हम सबकी एक अपनी कार्यशैली है और हम सबकी अपनी एक एस्पिरेशन है कि मुझको ये काम करना है। तो होटल सबकी एस्पिरेशन नहीं हो सकती है, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको क्रिएट करें एज एन एस्पिरेशन। तो हमने वो किया। उसके बाद 11 महीने तक हम उनको अप्रेंटिस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ पर हम उनको एक प्रेफर्ड एरिया में, क्योंकि 9 महीने काफ़ी होते हैं आपको समझने के लिए कि आपको क्या काम बहुत अच्छा लग रहा है, तो उस बहुत अच्छे काम में और निपुणता लाने के लिए और सक्षमता लाने के लिए हम उनको 20 महीने का ये पूरा प्रोग्राम कराते हैं। अब साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सबको समझना है कि हम सब एक मंजिल, एक पॉइंट से भले ही अपनी ज़िंदगी शुरू करें, लेकिन रास्ते में हम सबके अलग अलग चैलेंजेस हैं, हम सबके अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं। किसी की फैमिली से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, किसी की फैमिली से कम मिलता है, किसी का शरीर उसको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करता है, किसी का शरीर उसको थोड़ा कम सपोर्ट करता है। तो इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमने 4 महीने का एक विंडो पीरियड भी ऐड किया कि अगर कोई थोड़ा सा टाइम ले रहा है सीखने में, समझने में, उनको वो भी एक अवसर मिले। और ये पूरे 2 साल के अंतराल में हमने जो बच्चा किसी भी एडुकेशन बैकग्राउंड के भी अगर हमारे साथ आया, वो आज फुल टाइम जॉब रोल हमारे साथ कर रहा है द ललित में। और यही हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजी भी है, क्योंकि और स्ट्रैटेजी इसलिए क्योंकि इसमें बहुत काम है।
हमको पेरेंट्स को भी कन्विंस करना पड़ता है, और वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते, और इसमें उनकी गलती नहीं है, उसमें गलती हमारी है एज अ समाज, एज अ सोसाइटी, क्योंकि हम लोगों ने कभी उस तरीके से समाज का एक आईना जो है वो हमारे सामने रखा नहीं कि हमको ऐसा एक समाज बनाना है जहाँ पर आप जैसे हैं आप वैसे आकर भी अच्छे से रह सकते हैं बिना किसी सवाल के और बिना किसी विवशता के। साथ में हमको ये देखना होगा कि जब हम ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के साथ काम करते हैं, यंग अडल्ट्स के साथ काम करते हैं, तो हर किसी का बॉडी हमको समझना है कि उसका एक अलग टाइप है, उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट है। हम होटल में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रेमेडियल थेरेपी, ये सारे सेशंस नहीं कर पाते, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हमने 2 ओवर एंड अबव जो हम सबको छुट्टियां मिलती हैं उसके साथ 2 और छुट्टियां ऐड कर दी, ताकि वो लोग बाहर से अपनी ऑक्यूपेशनल और रेमेडियल थेरेपीज़ का भी जो सपोर्ट उनको मिलता है वो ले सके और उनको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। एसिड अटैक वॉरियर्स एक ऐसी अलग वो है जो बहुत ही हाल ही में 2021 में डिसेबिलिटी कैटेगरी में ऐड की गई, लेकिन आज भी बहुत ही लोगों में विवशता है। मतलब हम सब ने कोविड में अपने चेहरों पर मास्क लगाने तो पसंद किए, लेकिन आज भी अगर कोई मास्क या अपने चेहरे को दुपट्टे से रखकर अपने ऑफिस में काम करने की इच्छा जाहिर करता है तो हम सबको एक संकोच होता है। हमने उस संकोच को दूर हटाया और हमने अपने एसिड अटैक वॉरियर्स को, और हमने उनका नाम दिया एसिड वॉरियर्स, नॉट सर्वाइवर्स, क्योंकि सर्वाइवर्स जो होगा ना वो हमेशा आपको सिंपैथाइज कराता रहेगा, और हमारे हर एक दोस्त की कहानी यही है कि हमको सिंपैथी नहीं चाहिए, हमको एम्पैथी चाहिए, हमको प्यार चाहिए। और ये जो बैच है ना प्योर लव का, वो यही है कि आप अपने दिमाग से सब तरीके की अजम्पशंस, सब तरीके की भावनाएं दूर रखकर सिर्फ एक प्रेम की भावना रखकर आगे आइए। हम सब लोग अपने ऑफिस में भी ये जब हमारा स्टार्ट हुआ तो मैंने सबसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि आप में से कितने लोग देश की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और सब लोग अपने हाथ खड़े कर लिए। और सबसे पूछा कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का था हम उसकी मदद करते हैं, हम उसका ये सपोर्ट करते हैं, हम उसका ये करते हैं। तो मदद जो था ना वो कॉमन था, तो मतलब हम सबको लगता है कि हम मदद करेंगे तो देश विकसित होगा। ठीक है, कुछ लोग इकोनॉमिकली किसी की हेल्प कर देते हैं, कुछ लोग किसी को कुछ एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमने कहा कि आप अगर अपने साथ एक साथी भी ऐसा लेकर आएंगे जिसको आपको लगता है कि आपको ज़िंदगी में मदद करनी चाहिए और उसको हम यहाँ पर सशक्त बना सकें, तो वो आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी टीम का, जो 3500 लोग हमारे साथ काम करते हैं होटल में, क्योंकि अगर वो उन सब लोगों ने अपनी तरफ जिम्मेदारी नहीं ली होती कि उनको वो सेफ स्पेस क्रिएट करना है, उनको वो प्रेम और अपनत्व की भावना जो है उसको नीचे तक लेकर जाना है, तो ये कुछ भी संभव नहीं हो पाता। मेरे लिए बोर्ड में बैठकर पॉलिसीज़ का गठन करना बहुत ईजी है, मेरे लिए फोरम्स में आके बोलना बहुत ईजी है, लेकिन ये सब चीज़ें आसान तब हुई हैं जब उन हर एक व्यक्ति का मुझे सपोर्ट मिला है और हम सबको एज एन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट मिला है कि हमको ये सब कुछ करना है। हमको याद रखना है कि जो विश्वास से लेकर ट्रस्ट का फैक्टर होता है ना, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। आप बिलीव चीज़ों में कर सकते हैं, आप बोल रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, ये सब सुन लेंगे और इन सबको हो जाएगा कि हाँ वो भी ऐसा सब कुछ करते हैं। लेकिन जब ये अपनी आंखों से देखेंगे उन सब चीज़ों को होता हुआ, जब ये देखेंगे कि लोग वहाँ पर काम करते हैं, तो उनके अंदर जो वो विश्वास है वो और ज़्यादा डेवलप होगा। ये हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजी है। हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजी है कि आप सब लोग ललित में आए, और हम सब लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये हम हायरिंग कर रहे हैं तो ये सिर्फ हमारा कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट में उनकी नहीं है। हम चाहते हैं कि, और हम देखते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हमारे गेस्ट भी हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हमारे को बिजनेस भी देते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हमारे होटल को एक नई ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इस देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हमारे इस समाज का अभिन्न अंग हैं। और डिसेबिलिटी एक गंदा वर्ड नहीं है, इसको न्यूट्रलाइज, इसको मेन स्ट्रीम करना है। और हम सबको ये याद रखना है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं ना वो हमको अलग बनाते हैं पर गलत नहीं बनाते। इन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना है ताकि हम सब एक दूसरे के सहभागी बने, साथी बने, और इस देश को उस ऊंचाई और उस बुलंदी तक लेकर जाएं जिसका हम सपना हर एक व्यक्ति देखता है। बहुत अच्छा, आपने इतना इंस्पायरिंग बोला है कि मैं इस पे क्या कहूँ। अभी एक चीज़ तो क्लियर है कि जैसा आप सोच रहे हैं उससे काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। आपने जिस तरीके की आपकी सोच है उससे ये समझ में आ रहा है कि आप उसको एज एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और डिसेबिलिटी को ना समझने को आप एक डिसेबिलिटी मानते हैं।
और ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि हम सब में कुछ तो डिसेबिलिटी सब में है। तो अब हम चाहेंगे कि ऑडियंस हमारे पास में है, तो आपके पास में जो क्वेश्चन है आप प्लीज़ अपना हाथ रेस करें और आपके पास में माइक्रोफोन लेके जाएंगे हम, और पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं या आपके कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ हाथ रेस कीजिए। सो माइक्रोफोन प्लीज़, या फिर मेरा माइक्रोफोन ले सकते हैं आप। हाँ हाँ प्लीज़। हाँ लव सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? Thank you. Very interesting contributions by all the panelists. I just want to know कि GRC में आप लोगों का contribution क्या हो सकता है? GRC is a global resource center. तो उसमें आप लोगों का कुछ योगदान हो सकता है या नहीं? Basically, that is what I want to know. ये सारे पैनलिस्ट से पूछ रहे हैं लव सर की जो हमारा ग्लोबल रिसोर्स सेंटर है उसमें आपका गुरुग्राम में है। कंट्रीब्यूशन हो सकता है? गुरुग्राम में है। First of all, have you heard of the Global Resource Center by Sarthak? And if so, क्या आपने क्या सुना है और उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये हम जानना चाहते हैं। हाँ, yes. Lavji, thank you. Yes, we have heard about the Global Resource Center, right? Unfortunately, I have not been able to visit currently the system and understand that what are the programs that are being run across. So I think I would schedule this as soon as possible to understand the all the activities out there. And then of course we can pick and choose a couple of areas where we can feel that we can be a partner with Sarthak to create that difference. Okay, so I would also like to mention कि एक तो आप हमको बताइए कि हम कैसे contribute कर सकते हैं, हमको बहुत खुशी होगी आपके साथ जुड़कर और काम कर कर। दूसरा, क्योंकि I just googled and vocational training ही दिखा, इंटरनेट बहुत स्लो है। वो अभी हमारा एक स्कूल है द ललितसुरी हॉस्पिटैलिटी स्कूल फरीदाबाद में, और पिछले 4 साल से हम काउंसिल के साथ ट्राई कर रहे थे कि किस तरीके से काउंसिल स्पेशल एजुकेशन सेक्टर फॉर स्टूडेंट्स इन हॉस्पिटैलिटी स्टार्ट करे, क्योंकि अभी तक हमको जो समझ में आया और जो देखा हमने देखा कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स ही हो रही हैं सिर्फ हॉस्पिटैलिटी में, डिग्री प्रोग्राम्स नहीं है, डिप्लोमा नहीं है। तो हमने उनको रीच आउट किया और फाइनली 2 साल बाद दे सेड कि आप स्टार्ट कर लो, आपको जैसे करना है और हम आपको फिर बाद में सपोर्ट कर देंगे। तो हमने 1 साल लिया और पिछले साल हमने फाइनली स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए भी डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया और डिप्लोमा स्टार्ट किया। इस साल भी सेम चल रहा है। तो हम बहुत ही खुश होंगे अगर आप हमारे साथ उसके साथ लिए कोलैबोरेट करेंगे। हम हॉस्पिटैलिटी में जिस तरीके से भी बच्चों को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, आप हमारा सपोर्ट उसमें एक्सेप्ट कीजिए और हम बड़े ही हमको खुशी होगी आपके साथ काम कर उसके लिए। Thank you. As Devanjan and Akshay said, I just wanted to add here, means what exactly you need the help from us, first of all that. And since I am dealing with so many clients, so what exactly you are looking for, like talent acquisitions or perspective of training and development? So उस हिसाब से हम लोग आपको support कर सकते हैं फिर। Addition to her, same like our organization also, we have offices in Gurgaon, and talent acquisition part, of course we can check, and we have tremendous opportunities, so we can of course visit the center, and we can try for that. तो आप सब बहुत ही इंकरेजिंग पार्टिसिपेंट हैं, आप सब ने ये एक्सेप्ट किया कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो उस सेंटर से जुड़ा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज एन एंटरप्रेन्योर लीडिंग आईटी बिजनेस,
मेरे पास में इस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था जब तक कि मुझे डॉक्टर अग्रवाल ने अपने साथ जोड़ा। तो मैं वहाँ पे एक वो डार्क रूम है उसमें गया मैं, और उसमें एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी इन्होंने बनाई हुई है। आप सब आएंगे आपको अच्छा लगेगा कि आपको ये समझ में आएगा कि कैसा फील होता है किसी को अगर उसको दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। और वहाँ पर मज़ेदार बात ये थी कि जो हमें गाइड कर रहे थे उन्होंने हमें ये बोला कि देखिए ये कोई डिसेबिलिटी वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप डिसेबल्ड हैं इस समय, मैं बहुत एबली यहाँ पर मूव कर सकता हूँ। तो इससे हमें समझ में आता है कि टेबल्स कैन बी टर्न, एंड इसमें कितना कॉन्फिडेंस है उन लोगों के साथ में। और एक बार आप आइए ज़रूर, तो उसके बाद में हम सब लोग और बात करेंगे कैसे कोऑपरेट करना है, एक दूसरे से लर्न कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको विराम देंगे, और मैं क्विकली थोड़ा सा एक बार आप सबको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या बात हुई हमारी। इसमें 1 मिनट लूँगा, उसके बाद में वी कैन डू द फेलिसिटेशन। तो सबसे पहले प्रियंका जी आपने काफ़ी अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव करना है और आपने बहुत लार्ज लेवल पे किया हुआ है तो हमें उसको बड़ा स्टेप वाइज करना चाहिए। और जैसे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के चैलेंजेस देखने चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में मान लीजिए ट्रेनिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो हमें वो रोल भी खुद करना होगा अगर हम हायर कर रहे हैं पीपल विद डिसेबिलिटी को और उनके पास प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और देवंजन जी आपने जो जिस वी मार्ट के ब्रांड को रिप्रेजेंट किया है बड़े अच्छे से, क्योंकि आपने जैसे डेमोक्रेटाइजिंग फैशन आपकी कंपनी का पर्पज़ है, उसी तरीके से आपने किस तरीके से डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस को पे वर्क किया हुआ है आपने। और जो पॉइंट मैं आपसे लर्न करके लेके जा रहा हूँ कि दिस ऑल स्टार्ट्स विद द माइंडसेट, और मैंने ये देखा कि इसी पॉइंट को आगे टच करते समय अक्षय जी ने भी यही माइंडसेट रिलेटेड इश्यूज़ को काफ़ी एड्रेस किया। तो हम लोगों को सबको इस चीज़ पे देखना चाहिए। जैसा इन्होंने अक्षय जी ने बोला कि बच्चा एक बच्चा ही होता है पेरेंट के लिए, तो एज अ फादर आई कैन टोटली रिलेट टू दैट। और उस समय सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों को ये देखना है कि कैसे एसोसिएट हो पाएँ सोसाइटी के साथ में, और डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं सोसाइटी के जिनकी अलग अलग एबिलिटी है कैसे एक साथ वर्क कर पाएँ और कैसे एक साथ सीख सकें एक दूसरे के थ्रू। तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारा आपका डिस्कशन रहा आज। और इसमें जो मुझे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ समझ में आई दीपिका जी से, वो ये था कि क्योंकि इनका बहुत अच्छा हम लोगों के साथ एसोसिएशन रहा है सार्थक के साथ में, तो ये हमें बता पाए कि कैसे सार्थक को और आगे अप्रोच करना चाहिए चीज़ों को। जॉब मैपिंग का इन्होंने सजेशन दिया, बहुत अच्छा था वो। सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का बारे में इन्होंने बताया, और इनका ऑर्गेनाइजेशन इतने लार्ज स्केल पे करता है तो इनका ये एक्सपीरियंस डेफिनेटली मायने रखता है। सो थैंक्स अ लॉट ऑल द ऑडियंस, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी चीज़ें पसंद आई, और थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हैंडिंग इट ओवर टू माय वेरी गुड फ्रेंड ओवर देयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू समीर जी, बड़ा दिलचस्प रहा ये सेशन। इसमें हमें एक सरल सी जो सीखने को एक चीज़ मिली कि किसी भी चीज़ को स्केल करने के लिए पहले आपका ह्यूमन टच होना चाहिए, उसके पश्चात प्रोसेस सेट करना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस से ही स्केल आती है, स्केल से ही गति आती है। तो धन्यवाद आप सभी का, समीर जी और सारे पैनलिस्ट का, प्रियंका जी, दीपिका जी, देवांजन जी और अक्षय जी। अब मैं निमंत्रण दूंगा कालरा सर को, जो आईमा के एक्स प्रेसिडेंट हैं और हमारे गुरु हैं, और साथ में ही मैं प्रकाश शर्मा जी को, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो एपेक्स बॉडी है स्किलिंग के लिए, उसके एक्स सीएफओ हैं, और उनका एक विशेष योगदान रहा है सार्थक को एक नई प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच देने का। तो मैं आप दोनों को निमंत्रण दूंगा कि डायस पर आएं और हमारे डिग्नेटरीज को, पैनलिस्ट को एवं समीर निगम जी को फेलिसिटेट करें, उनको सम्मानित करें। कालरा जी समीर जी को सम्मानित करते हुए।
कालरा जी, इसके बाद प्रियंका आनंद जी को फेलिसिटेट करते हुए, प्रकाश शर्मा जी से मैं अब निवेदन करूंगा कि दीपिका मंडेलिया जी को सम्मानित करें। मैं प्रकाश जी से दोबारा निवेदन करूंगा कि देवांजन रे जी को, जो हेड एचआर रिटेल चीफ एचआरओ हैं वी मार्ट के, और मैं कालरा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अक्षय त्यागी जी को, जो ललित होटल के डाइवर्सिटी और इंक्लूजन लीडर हैं, उनको सम्मानित करें। और यहां पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, आप कृपया इन चारों पैनलिस्ट से जुड़े मिलें, क्योंकि ये आपको अच्छी बातें बता सकते हैं, लेकिन साथ में आपको रोजगार के एक विशेष अवसर भी दे सकते हैं। तो आप इनसे जुड़िए, इनसे बात कीजिए। जब मुलाकात होगी, बात होगी, तो दूर तक जाएगी। आपका शायद दिन और आपकी दिनचर्या और आपका दिशा दशा एवं भविष्य तीनों बदल जाएगा। धन्यवाद। एक अगर ग्रुप फोटो हो सके तो